Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9th, subject social science, and today we are going to discuss chapter number 3rd of history, and the topic name is Nazism and the rise of Hitler. This is the lecture 5th. Firstly, we will recapitulate the Nazism. Nazism was the ideology of Adolf Hitler about the world politics. And after the First World War, Adolf Hitler joined the German Worker Party and they formed the Nazi Party. So student, let's start. Today we will cover some topic. Firstly, we will discuss about the Nazi worldview. The Nazi thought about the different category, different religion, different religious. And after that we will discuss about establishment of racial state. And racial state means Adolf Hitler, they were against the Jews, gypsies and other categories. And after that we will discuss about the racial autopsy. And after that we will discuss about youth in Nazi Germany. Many youth party, many youth league were organized by Adolf Hitler. And after that we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture. And last I will give some question in your homework. Okay student. So student, let's start. And in last lecture we have discussed about the condition of First World War and the Second World War. And today we will discuss about the Nazi thought about the worldview, and they were against the different caste. They were favored only Jewish caste, Aryans caste, and they were against the Jewish caste. So student, let's start. Firstly, we will discuss about the Nazi worldview. Nazi ideology was similar to Hitler worldview because Nazi party was formed by Adolf Hitler, and according to this there was no equality between people but only a racial hierarchy was present. According to the Adolf Hitler, there was no equality among different people. There was a racial hierarchy, there was a racial discrimination among the people. In this view, according to the Adolf Hitler, only blue-eyed Nordic German Arya were at the top. They were favored the German Aryan people and they were against the Jews. And they, according to the Adolf Hitler, they thought Jews were located at the lowest rank. According to the Nazi, मीन्स अडोल्फ हिटलर की थॉट के अकॉर्डिंग ओनली जो ब्लू आइड हैं, ब्लंड जिनके हेयर हैं, वो जर्मन आर्यन है, वो उन्हीं की रैंक क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सभी क्या है, उनकी रैंक है या उनकी जो लेवल है वो क्या होती है, काफ़ी लोवेस्ट होती हैं. तो इसी वजह से वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू अडोल्फ हिटलर दे वर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियल, उनके कलर के अकॉर्डिंग या उनके रिलीजन या उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर. All other colored people means those person who belong to other categories such as Poland, gypsies. They were placed अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल फीचर. उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी की बनावट के अकॉर्डिंग उनको क्या अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता था. एंड हिटलर रेशियम वाज बोरोड फ्रॉम the idea of Charles Darwin and Herbert Spencer. Hitler followed the ideas of Charles Darwin and Herbert Spencer in their racism philosophy. हिटलर ने जो रेशिज्म यानी कि कलर के बेस से जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसका आइडिया चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की आइडियोलॉजी से अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी. ड्राइविन
Darwin, a natural scientist, tried to explain that plants and animals were created through the concept of evolution and natural selection. Means Darwin was a natural scientist and he believed that all plants and animals were created natural. Only those, and the German Aryan, they develop according to their natural environment. And after that, Herbert Spencer, he was also a scientist. He introduced the idea of survival of the fittest. Means those person who have the fittest, they can only survive. According to this idea, only those species survive on the earth that could adapt themselves to changing climate condition. Mean those person who can change according to the environment, only they can survive in the earth. सो ड्रेविन और हर्बर के अकॉर्डिंग उनकी जो थ्योरी थी कि जो भी किसी भी पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, और हर्बर्ट और स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो पर्सन फिट है, जो कंट्री के लिए फिट है, या अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, या क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, तो वही स्पीसीज, वही पर्सन क्या है, सर्वाइव कर सकता है जो कंट्री के लिए क्या हो, फिट हो. तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पीसीज है वीक होती है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, कंट्री में से रिमूव हो जाती है, कि जो कंट्री के लिए फिटेस्ट है वही क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है. तो इन दोनों की थ्योरी से ही अडोल्फ हिटलर ने अपनी रेशियल थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया था. उनके अकॉर्डिंग ओनली जो आर्यन जो रेस है, या ब्लेंड है, ब्लू आइज है, वही कैटेगरीज ही क्या होती है, फिट होती है, वही कंट्री में क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है. आफ्टर दैट these ideas were used by the racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people. These ideas, Adolf Hitler ideas, were followed by different racists and politics, and they ruled over different German people and other categories. And the Nazi thinker believed that the strongest race would survive and weaker ones would perish. According to this, only strongest section of the society, they can survive, and other weaker section of the society would perish. मीन जैसे कि जर्मन कैटेगरीज के हैं, जो जर्मन आर्यंस है वही फिटेस्ट हैं और वही स्ट्रॉन्गेस्ट रेस हैं. इसके अलावा जो आपके ज्यूस हैं, जिप्सीज हैं, या मेंटल या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, वो कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वीक हैं, उनकी जो रैंक है वो काफ़ी लोअर है. तो नाजी के अकॉर्डिंग जो पर्सन क्या है, जो फिट होते हैं, जो कंट्री में अपने आप को क्या है, क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही उन्हीं को ही क्या है, कंट्री में सर्वाइव करने का क्या केवल राइट है. अकॉर्डिंग टू द theory of Adolf Hitler and many other thinkers, they believed the theory of Adolf Hitler and the Nazi party. And after that, according to them, the Aryan race was the finest and had to retain its purity, become stronger and dominate the world. According to them, according to the Nazi party supporter and according to the Adolf Hitler, only German Aryan, only this race can survive on the earth because they become stronger and dominate the world. And the other concept of Hitler ideology was related to geopolitical concept of Lebensraum, of living place. Lebensraum means living place for the German people. अकॉर्डिंग टू द अडोल्फ हिटलर ने कहा था कि केवल आर्यंस हैं, जो जर्मन आर्यंस पीपल हैं, वही क्या है, फाइनेस्ट रेस है, उन्हीं को ही सर्वाइव करने का केवल राइट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरे कंट्री पे रूल करने का भी उन्हीं का राइट होता है. और हिटलर ने एक और आइडियोलॉजी थी, उन्होंने कहा था कि कंट्री में जर्मन पीपल को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए, उनको लिविंग स्पेस चाहिए. इसलिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी उन्होंने, लेबेंसराउम, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन पीपल को रहने के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो क्या है, दूसरी कंट्री पे क्या करता था, एक्वायर करता था और उनकी कंट्री का एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया करता था. तो अकॉर्डिंग टू द लेबेंसराउम मीन्स मैनी स्पेस
required for the German people for living. Next, he believed that the new territories had to be acquired for settlement and to increase the area of the mother country. According to the Adolf Hitler, they wanted to enhance their power, and they want to acquire more territory, and they wanted to increase the area of mother country. And after that, he intend to extend German boundary by moving eastward to concentrate all German geographical in all place. So then he wanted to enhance their territory, so he moved eastward part of the country, and he wanted to all German people living in one place. हिटलर ये चाहता था कि जर्मन पीपल को ज़्यादा जगह पे रहने के लिए उनको ज़्यादा टेरिटरीज पे कंट्रोल करना चाहिए. इसी वजह से जर्मन की बाउंड्री को और एक्सटेंड करने के लिए उसने ईस्ट के साइड मूव किया, और वो चाहते थे कि जर्मन पीपल्स को रहने के लिए, जर्मन के लिए क्या है, एक ही जगह पे सभी जर्मन्स रहें, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल करना या उन पर रूल करना क्या ईजी हो जाए. इसी वजह वो चाहते थे कि जर्मन पीपल को डेवलपमेंट करने के लिए उनको एक ही एरिया में रहना चाहिए. इसी वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ को भी अपनी टेरिटरीज में क्या करते थे, इंक्लूड करते थे. वो चाहते थे कि जर्मन पीपल को रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी की रिक्वायरमेंट है, और वो मदर एरिया जो है, मदर कंट्री का एरिया को भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते थे. आफ्टर दैट, तो ये था बेटा आपका द नाजी वर्ल्ड व्यू. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. Racial states में there was discrimination on the basis of their skin color. Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic German Aryan. They alone were considered as desirable. According to the Adolf Hitler, only Nordic German Aryan were desirable, and other community were classified as undesirable. बेटा यहाँ पे जो थे अडोल्फ हिटलर के जो थॉट थी वो थी, उन्होंने रेशियल स्टेट बनाए थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया था उन्होंने स्किन कलर के अकॉर्डिंग. उन्होंने कहा था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर सुपीरियर देन अदर कास्ट, and they were desirable and other community were undesirable. Other categories such as Jews, Gypsies and black living in Nazi Germany was considered as racial inferior who threatened the biological purity of the superior Aryan race. They were widely persecuted. वो मानते थे कि जर्मन आर्यंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग जियोस, जेप्सिस और ब्लैक हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं, और ये जो इन्फीरियर थे वो काफ़ी पीछे थे, और उनको क्या है आगे तरक्की करने का कोई उनको राइट नहीं है. केवल जो जर्मन आर्यंस हैं वही सुपीरियर हैं, और उन्हीं को क्या करना चाहिए, आगे डेवलपमेंट करना चाहिए. और वो अपनी कंट्री में से नाजी में केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही लाना चाहते थे. उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी को प्योर और हेल्थी बनाने के लिए वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही क्या करते थे, सपोर्ट करते थे. अलग कैटेगरी जियोस, जेप्सिस और ब्लैक को अपनी कंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. उनको क्या मानते थे, इन्फीरियर मानते थे, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अलग मानते थे. इसी वजह से वहाँ पे कलर के बिहाफ पे या रिलीजन के बिहाफ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. एंड इवन रशियन एंड पोल्स वर tortured by the Nazi government. They captured civilians were being forced to work as slave labor. Russian and other Russian people and Poland people, they were tortured by the government, and they were being forced to work as a slave labor. And in Nazi Germany, Jews were the worst sufferer. Jews has been stereotyped as killer of Christ, and uncensored Jews lived in separately marked areas called ghettos. There were separate place for the Jewish categories people, and this area were called ghettos. जो रशिया और पोलैंड में रहने वाले जो सिविलियन थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड थी, उनको गवर्नमेंट के द्वारा टॉर्चर किया जाता था. एंड ज्यूस वर वर्स सफर. और नाजी ने जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो ज्यूस के लिए, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द ज्यूस, एंड दे थॉट दैट ज्यूस वर स्टीरियोटाइप, एंड दे थॉट दैट
दे ज्यूस वर द ज्यूस एज द किलर ऑफ क्रिस्ट, उनका मानना था कि ज्यूस ने क्या है क्रिस्ट को क्या है मारा था। इसी वजह से उन्होंने क्या है ज्यूस के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था। वो ज्यूस को उन्होंने बिल्कुल अलग कैटेगरी में उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और ज्यूस के रहने के लिए अलग एरिया बनाया गया था। जिस एरिया में ज्यूस रहते थे उस एरिया को कहा जाता गैटोज, उस एरिया को कहा था गैटोज, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था उनके रहने का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ की जो उनकी जो भी था वो सब कुछ अलग था और वो बिल्कुल भी ज्यूस कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको टॉर्चर किया जाता था एंड दे वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप फॉर द फाइनल सोल्यूशन। ओके, एंड द कंडीशन ऑफ ज्यूस वर वेरी बैड इन जर्मनी। आफ्टर दैट Hitler hatred of Jews was based on race, which could be specified only through their total elimination. They wanted the Jews were totally eliminated from the country. वो मानते थे, हिटलर सपोर्टर मानते थे, अडोल्फ हिटलर मानते थे कि जो है ज्यूस के साथ वो उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेटेड करते थे क्योंकि उनको कलर के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। एंड हिटलर ओनली व्हेन ही कुड बी सेटिस्फाई when the Jews were totally eliminated from the country. वो मानते थे कि ज्यूस को बिल्कुल कंट्री में से रिमूव कर देना चाहिए। इसी वजह से 1930 थ्रू टू 1938 द नाजी टेररिटाइज्ड, पपराइज्ड एंड सेग्रेगेटेड द ज्यूस। नाजी ने उनको क्या है उनके एरिया को अपने कंट्रोल में लिया, पपराइज्ड किया एंड सेग्रीगेटेड मीन्स उनको सेग्रेगेट अलग अलग किया। एंड the 1939 and during to the Second World War, the Nazi aimed to kill. The main purpose of Nazi to kill the Jewish category in gas chamber of Poland, and the main purpose to sent all Jews in gas chamber in Poland. पोलैंड जो था बिल्कुल जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है पोलैंड, जिसपे क्या है इन 1939 जर्मनी इन्वेडेड ऑन पोलैंड एंड द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वहाँ पे उनका मेन पर्पस था कि सभी को क्या है गैस चैम्बर में सेंड कर दिया जाए। इसी वजह से वो चाहते थे कि यहाँ पे मेन पर्पस उनका यही था कि नाजी की जर्मनी में से ज्यूस कैटेगरी को बिल्कुल क्या कर दिया हटाया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन पे अटैक किया था और काफ़ी सारे जो थे उनको चले गए थे, कंट्री छोड़ के ही वहाँ से क्या हो गए थे, छोड़ के चले गए थे। और इसी उनका मेन पर्पस था ज्यूस को जर्मनी से बिल्कुल बाहर करना। नेक्स्ट है बेटा द रेशियल ऑटोपाई। द रेशियल ऑटोपाई मीन्स द इमेजनरी कंट्री एंड दे वांटेड टू eliminate Jews from the country, and the Nazi tried to realize their racial ideal through genocide. They divided the occupied Poland. जो एडोल्फ हिटलर थे वो मानते थे कि कंट्री को क्या है रेशियल के अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने क्या है उन्होंने दे स्टार्टेड द वॉर डिफरेंट कंट्रीज और उन्होंने क्या है जीनोसाइड का रास्ता अपनाया। उन्होंने लोगों को बड़े लेवल पे मारना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने काफ़ी देवर किल्ड ज्यूस कैटेगरी, पोलैंड्स एंड मेंटली एंड फिजिकली डिसएबल्ड पर्सन एंड दे डिवाइडेड द ऑक्युपाइड पोलैंड। और उन्होंने क्या कर दिया पोलैंड वाले एरिया यानी उसकी नेबरिंग कंट्री थी उनको भी डिवाइड कर दिया। एंड द मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न वेस्टर्न पोलैंड वाज मेड पार्ट ऑफ जर्मनी। दोज पार्ट बिलोंग टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पोलैंड, दे वर मर्ज्ड इनटू जर्मनी। जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का वो भी जर्मनी में इंक्लूड कर लिया था। एंड पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज विच हैव देन ऑक्युपाइड जर्मन एंड दे वर टॉर्चर्ड द पोलैंड पीपल एंड दे वर फोर्स टू पोल्स पीपल लीव देयर होम एंड देयर प्रॉपर्टीज विच वर ऑक्युपाइड बाय द जर्मन। और उन्होंने क्या है पोलैंड में रहने वाले सभी लोगों को क्या है टॉर्चर किया और उनको क्या है काफ़ी सारे लोगों को उनको घर छोड़ने में मजबूर कर दिया। उनकी प्रॉपर्टी को जर्मन पीपल्स ने हायर कर लिया और काफ़ी सारे एरिया में पोलैंड के काफ़ी सारे एरिया में जर्मन ने क्या कर लिया था कंट्रोल कर लिया था। इसी वजह से वो कंट्री में जो जर्मन पीपल थे वो पूरे एरिया में क्या चाहते थे कंट्रोल करना चाहते थे और जीएस को कंट्री में से बिल्कुल रिमूव करना चाहते थे। नेक्स्ट Poles were deported to the other part called the General Government. Members of the Polish intelligence were murdered in large numbers in order
to keep the entire class of people under their control. काफ़ी सारे जो थे पोल्स थे, जो पोलैंड में रहने वाले सिविलियन थे, उन्होंने कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाने लगे. एंड द अदर पार्ट काल, उनको कहा जाता था जनरल गवर्नमेंट, उनको कहा जाता था जनरल गवर्नमेंट. एंड काफ़ी सारे जो वहाँ के जो पोलैंड में रहने वाले काफ़ी सारे पर्सन थे, जो इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पूरे जो काफ़ी सारे लोगों पे कंट्रोल करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने क्या है, जो भी पर्सन उनके अगेंस्ट होता उनको मारना स्टार्ट कर दिया, और कंट्री में से सभी इंटेलिजेंट लोगों को मारा उन्होंने, और सभी लोगों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. इसी वजह से पोलैंड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या कर लिया था, जर्मन ने कंट्रोल कर लिया था. और वो चाहते, दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर ओन कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियल मेथड, अपने अकॉर्डिंग. इसी वजह से काफी सारे लोगों को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया था. एंड आफ्टर दैट यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर वांटेड टू एनहांस देयर पावर, दे सपोर्टर, they control the country, and they were against the Jewish party. And after that they formed different youth party, and they wanted to provide a strong nation. So he believed that a strong Nazi society could be established by teaching Nazi ideology to the children. वो मानते थे कि बच्चों को, उनको बचपन से ही, उनकी एजुकेशन से ही उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो क्या है, बचपन से ही नाजी पार्टी को क्या करें, सपोर्ट करें. ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल वाज रिक्वायर्ड. पूरे बच्चों पे कंट्रोल करने के लिए उनको क्या है, इनसाइड और आउटसाइड कंट्रोल करने के लिए क्या है, उनको नाजी पार्टी को सपोर्ट करने, उनको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाना चाहिए. और बच्चों को इनसाइड और स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा उनको क्या है, नाजी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है. एंड ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड. सभी स्कूल्स को क्लीन किए गए. प्यूरिफाइड का मतलब कि क्या है, जो भी चिल्ड्रंस एंड टीचर्स ऑफ ज्यूस व्हेन जिप्सीज वर थ्रोन आउट स्कूल. क्लीन एंड प्यूरिफाइड का मतलब है दोज चिल्ड्रन एंड टीचर्स वर बिलोंग टू ज्यूस कैटेगरी, एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, दे वर डिसमिस फ्रॉम द स्कूल्स. जो भी चिल्ड्रन या टीचर जो ज्यूस या जिप्सिस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्हें स्कूल से क्या करते थे, रिमूव कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी की कंट्री में कोई भी पर्सन ज्यूस या जिप्सिस सिस्टम को फॉलो करे. और इसी वजह से उन्होंने क्या है, सभी टीचर जो भी जियोस और जिप्सिस कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको स्कूल से निकालना स्टार्ट कर दिया, और वो कंट्री को बिल्कुल क्लीन और प्यूरिफाई बनाना चाहते, क्योंकि बिकॉज दे वर अगेंस्ट द जियोस एंड जिप्सिस. And after that, the school textbook were rewritten. They wanted to enhance their power, so they written the school textbook. They written the school syllabus, and Germans were students could not sit according to the new policy of education. The Jews and the German could not sit and play together. And the racial science were introduced to just an ideas of race. A new syllabus was introduced, racial science, and they provide Nazi ideas of race, and stereotype about Jews were popularized even throughout math classes. और वहाँ पे जो स्टीरियो means they thought Jews were stereotype and they were popularized even throughout math classes. और वहाँ पे उनका काफ़ी क्या किया जाता था, उनका मजाक बनाया जाता था, उनको ज्यूस को क्या है, स्टीरियोटाइप कहा के बुलाया जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि ज्यूस हैं वो स्टीरियोटाइप हैं, वो कंट्री में कोई चेंज नहीं करना चाहते. एंड जो नाजी पार्टी थी वो क्या थे, ज्यूस के बिल्कुल अगेंस्ट थी. इसी वजह से उन्होंने अपनी क्या की थी, अलग पार्टी फॉर्म की थी. चिल्ड्रन वर taught to be loyal, submissive, hate Jews and worship Hitler. चिल्ड्रंस को सिखाया जाता था कि उनको वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, हेट और को ज्यूस के अगेंस्ट होना चाहिए, और उन्हें हिटलर को सपोर्ट करना चाहिए, हिटलर की पूजा करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए. एंड दे वांटेड टू सपोर्ट लाइक boxing was introduced, encouraged violence and aggression among children. They wanted to enhance sports system, and they liked boxing. According to the thought of Adolf Hitler, boxing was introduced and encouraged the violence and aggression among children. And they thought that boxing could make children iron-hearted,
एंड स्ट्रॉन्ग एंड मेस्कुलिन। वो मानते थे कि जिस पर्सन को बॉक्सिंग आती है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो बच्चों को बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बच्चों बचपन से स्ट्रॉन्ग हो, आयरन हार्टेड हो, और क्या है ज्यूस के साथ स्टार्टिंग से ही क्या करें, हेटेड होगी, और तभी वो क्या है नाजी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से वो बच्चों को क्या है सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चे क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। And many youth organizations were formed in Germany, and many youth organizations were made responsible for educating German youth and spirit of national socialism. एक यहाँ स्लोगन के अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज़ किया गया कि सभी जर्मन जो यूथ है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, एंड 10 year old चिल्ड्रन हैड टू ज्वाइन जंग वॉक। जो भी स्टूडेंट 10 ईयर के होते थे उनको क्या है नाजी पार्टी के द्वारा बनाई गई जंग वॉक में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, उनके मेंबर बनते थे। एंड इन 1922 द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड। 1922 में यूथ लीग बनाई गई नाजी, और उसके 4 साल बाद उसका नाम चेंज करके लिखा गया हिटलर यूथ। उनका मेन पर्पस था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर भरना, और इसी वजह से यूथ लीग बनाई गई 1922 में, और बाद में उसका नाम लिखा गया हिटलर यूथ। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन क्या है नाजी पार्टी को सपोर्ट करे, इसलिए उन्होंने हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एंड एट द एज ऑफ 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टूडेंट 14 साल के होते थे, जो 10 ईयर्स के थे जंग वॉक में थे, और जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चा 14 ईयर्स का होता था उसको क्या है हिटलर यूथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना कंपल्शन था। एंड टू कंट्रोल द यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर बैंड। टू कंट्रोल यूथ ऑर्गेनाइजेशन पे क्या कर दिया, बैन कर दिया था। And after a period of rigorous ideological and physical training, youth had to join the labor service at the age of 18. 18 years तक होते होते उनको क्या है बाद में लेबर सर्विस उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और बाद में उनको लेबर सर्विस में वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म, और उसके बाद उनको क्या है 18 ईयर्स होने के बाद उनको आर्म फोर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और नाजी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना उनके लिए क्या था कंपल्शन था। तो दिस वाज द thought of Adolf Hitler about the world view, and they formed different youth party for the German people, German youth category also, and they wanted to enhance their power, so they formed different youth party. And after that 18 they had to enter in Nazi organization, and it was compulsion to all German male student. And today your homework solutions. Which famous economist was appointed by Hitler for economy recovery for Germany? Answer: economist Halmer Schacht was appointed, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. Question number 2. How did Hitler follow the slogan of one people, one empire and one leader? Answer is Hitler pulled his country out of League of Nations in 1933 and reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated and Austria and Germany in 1938 under the slogan of one people, one empire and one leader. Among which 3 countries Tripartite Pact was signed? Answer: in September 1940, a Tripartite Pact was signed between Germany, Italy and Japan. Answer question 4. When did the US enter the World War? When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered into World War II. And question number 5. Explain the impact on Germany of a refusal to pay compensation in 1923. First,
The French occupied Ruhr, the leading industrial and mineral dominating area. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, the value of the German fell. And due to the fall in the value of mark, prices of goods high and Germany fell into the hyperinflation situation. Question number 6. How was economy recovery made in Germany? Economy reconstruction. First, Hitler gave the responsibility to economic recovery to the economist Helmut Schmidt, who wanted full production and full employment through a state-funded work creation program. After that, as a result, the famous German superhighway and the people car Volkswagen were made. And question 7. How Nazi party was formed? Answer is Hitler was born in 1889 in Austria, and after that, after Versailles Treaty, Hitler joined the German Worker Party in 1919, which was later renamed as the National Socialist German Worker Party. And third, it was later came to be known as Nazi Party. All question done in your fair notebook, student. And today your homework, student. Do following question. What was Jung Walk? Question second. What was the Nazi Youth League? What was its main objectives? Who were considered undesirable by Hitler? Question 4. Explain Hitler or the Nazi policy toward the Jews. Question 5th. Which youth organization were formed? Question 6th. Enlist any 3 components of the ideology of Hitler. And student, all questions done in your fair notebook and revise chapter. Thank you.